सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी लोग सुखी रहें। हे प्रभु, सभी लोग निरोगी रहें। हे प्रभु, सबका मंगल हो। हे प्रभु, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक थीम डिसाइड करता है और सभी देश उस थीम पर हेल्थ के प्रति अपना कार्य करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के कार्य करते हैं और यानी कि जन जागरूकता के कार्य करते हैं और हेल्थ पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसी पर डिसाइड किए जाते हैं। इस वर्ष की थीम जो डिसाइड करी गई है वो है डिप्रेशन लेट्स टॉक, यानी कि सभी मिलकर के डिप्रेशन के विषय में पीड़ित व्यक्ति व अन्य जागरूक हों, बात करें, जिससे कि समस्या का समाधान संभव हो सके। ये जो थीम होती है वर्ल्ड हेल्थ डे की 7 अप्रैल के लिए, इसका डिसीजन लगभग 6 माह पहले से शुरू हो जाता है। इस वर्ष की थीम अक्टूबर 2016 में डिसाइड कर ली गई थी कि 7 अप्रैल 2017 को डिप्रेशन विषय पर सभी देश कार्य करेंगे। आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव एंड शैल बेनिफिट ऑल द पर्सन्स सिटिंग ओवर हियर। IAPSM जो कि एक नेशनल बॉडी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशंस के लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस प्लान की है। एज अ पार्ट ऑफ these celebrations, जो ये activities हैं, all the medical colleges in the country are participating and organizing activities simultaneously, and at present more than 300 medical colleges throughout the country are participating in it. Now the set of activities, they include CME sessions, quiz competitions mainly for MBBS students, then wide publicity for public awareness by videos which have been uploaded on YouTube, designing and developing posters and pamphlets. I am happy to announce that we have submitted entries in all the categories. Our public awareness videos, both the UG and PG categories, have been approved and uploaded on the YouTube. Thanks to all who have been participated for the development of these awareness videos and all the material, mainly Dr. Jain, Dr. Mahendra Jain, Dr. Parth, Dr. Jilova, the PGs of their department, our students Kushal, Nishant, Akash, for all your great efforts. Now I invite Dr. Swati to please come on the dais and begin the rituals. Thank you. Thank you, ma'am. Good morning to one and all present here. Now I invite our additional principal sir, Dr. Bhaskar sir, our esteemed guest, Dr. Mahendra Jain sir, Shri Acharya Satyajit ji, and Dr. Renu Bedi ma'am to please come forward to lead the auspicious lighting of the lamp and seek Ma Saraswati's blessings. Thank you, sir. Thank you, ma'am. With reverence, I extend my warm welcome to our Honorable Additional Principal, Dr. Bhaskar, sir, Senior Professor and Head of the Department of Orthopedics. He is having a dynamic personality with exemplary vision in field of orthopedics as well as administration. Welcome, sir.
I welcome Dr. Mahendra Jain, sir, Senior Professor and Head of the Department Psychiatry. Welcome, sir. I welcome Darshana Shastri, Yogacharya, Shri Acharya Satyajit ji. स्वागत है सर आपका. Now to commence with the session, we look forward to get exposure about what the best of the brains think about this new age problem, depression. So I request now our additional principal sir to share his thoughts and views on today's topic. And I request the dignitaries to take their seat. आदरणीय आचार्य जी, अन्य आचार्यगण, डॉक्टर महेंद्र जैन, डॉक्टर बेदी और मेरे साथियों, मानसिक अवसाद का जहां तक प्रश्न है, मेरा एक छोटा सा इसमें सबमिशन है और मानना भी है कि ये मानसिक अवसाद ही सभी रोगों की जननी है. जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया, उसने अपने व्यवहार को कंट्रोल किया, अपने धर्म को कंट्रोल किया, और जब व्यवहार और धर्म कंट्रोल होगा तो हम तीसरी स्थिति में जा सकते हैं. वो तृतीय स्थिति है आध्यात्म की. व्यवहार एक बहुत छोटी चीज है. व्यवहार में जानवर भी व्यवहार में रहता है, वो भी एक धर्म को निभाता है. और क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारा व्यवहार भी एक प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, जो हम प्रकृति जो हमें देती है वो हमारा व्यवहार होता है. धर्म जो हमें संस्कारित किया जाता है शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, वो हमारा धर्म होता है. अब व्यवहार की बात करें तो जो व्यवहार पहली स्थिति जो है वो है प्रकृति. प्रकृति ने हमें सब कुछ वैसा ही दिया है जैसा सबको दिया हुआ है. हम प्रकृति से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. आज हम इतने जने बैठे हुए हैं यहां पे, और एक इस गेट से कोई एक प्राणी, मनुष्य के अलावा कोई प्राणी आता है, वो भी हमें इतना ही देखेगा जितने हम बैठे हैं, और वो भी उतने ही काउंट करेगा जितने हम काउंट करते हैं. तो ये जो दृष्टि देती है प्रकृति, हमें जो ये दृष्टि देती है, ये प्राकृतिक दृष्टि है, ये हमें और जीवों को समान रूप से दी गई है. दूसरी दृष्टि आती है धर्म की दृष्टि. वो हमें प्राणी को दी जाती है. वो हमें शास्त्र देते हैं, गुरुजन देते हैं. धर्म की दृष्टि कैसे विभाजित करें? जैसे एक कोई व्यक्ति है या कोई भी, किसी को भी ले लें, हमें संस्कार जो सिखाते हैं, जो हमें शास्त्र सिखाते हैं, वो होती है धार्मिक दृष्टि. एक स्त्री किसी के लिए वो बेटी हो सकती है, किसी के लिए वो बहन हो सकती है, किसी के लिए वो माता हो सकती है, किसी की वो मित्र हो सकती है, किसी की वो पत्नी हो सकती है वो एक ही. प्राकृतिक दृष्टि से वो एक है, पर वो धार्मिक दृष्टि से अब अलग अलग है. वो हमारी धार्मिक दृष्टि है. धर्म का अगर यहां पे कहा जाए, धर्म की जहां तक सवाल है, तो धर्म एक व्यावहारिकता को, मनुष्य ने धर्म व्यावहारिकता को थोड़ा सा ऊपर ले जाके एक जीने का तरीका है. तृतीय दृष्टि है
वो है आध्यात्मिक दृष्टि, स्व को जागृत करने की स्थिति। उसमें धर्म भी काम नहीं आता है, व्यवहार भी काम नहीं आता है, बस स्व नजर आता है। जो ये मानसिक अवसाद है, वो जब तक हम प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टि का समन्वय ढंग से नहीं करेंगे, तब तक ये अवसाद पैदा होता रहेगा। मैं यहां पे आध्यात्मिक की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर अगर देखते हैं तो एक पागल और एक जो परमात्मा में लीन हो चुका है, दोनों की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। भेद केवल है वहां पे जागने का। एक जागा हुआ चल रहा है, एक सोया हुआ चल रहा है। जो सोया हुआ चल रहा है वो पागल है, और जो जागा चल रहा है वो भी पागल की तरह नजर आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर पागल नहीं है वो, पर व्यावहारिक दृष्टि के अंदर वो पागल नजर आएगा। समन्वय जो है वो प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टि को जब हम अच्छी तरह समझ जाएं और उसका समन्वय ढंग से कर लें, तो हम मानसिक अवसाद से बच सकते हैं। इसलिए हमें प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए और धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। और जब हम मानसिक अवसाद से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम कई रोगों को कई डिजीजेस को हम खत्म कर सकते हैं। ये विषय बड़ा लंबा है, मैं घंटे भर भी, अगर 2 घंटे भी मेरे को अगर टाइम दे दिया जाए तो आई कैन कंटिन्यू टॉकिंग ऑन दिस इशू। हम छोटा सा एक एग्जांपल देके मैं अपने बात को, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग बाग बहुत इंपॉर्टेंट लोग बाग बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना है, कुछ सुनना है, मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अगर हम हार्ट मरीज को देखें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस पे 99% जो रोल है वो मानसिक कारण है। अगर वो मानसिक कारण अपन कंट्रोल कर लेंगे तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। ये एक मैं छोटा सा इसमें एग्जांपल ऐड करके मैं बंद करूंगा। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। मेरा मानना ऐसा है कि वो एक्सीडेंट भी मानसिक अवसाद का कारण है। अगर हमारी मानसिकता, जहां हम उपस्थित हैं, जहां हम गाड़ी चला रहे हैं, या जहां पे हम उपस्थित हैं, अगर वहां पे हम उपस्थित रहेंगे तो हमारे एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं है। हम ड्राइविंग रोड पे कर रहे हैं और मेरा ध्यान जो है, मेरा दिमाग जो है वो कहीं पैसे में लगा हुआ है। शरीर अलग, दिमाग अलग, मन अलग। ये मानसिक अवसाद, जिसका शरीर, मन और बुद्धि एकत्व में हो, शरीर, मन, बुद्धि एकत्व हो, वो अवसाद में कभी नहीं आ सकता है। धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त तरीके से प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टि का विश्लेषण किया और शरीर, मन और बुद्धि के एकत्र होने में मानसिक अवसाद नहीं हो सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन is a specialized non-political health agency of the United Nations with headquarters at Geneva. It celebrates World Health Day annually on 7th April with a particular theme chosen to run the celebration and take care of health for the whole year. This year we have Depression Let's Talk, a new age problem.
Now I invite our Senior Professor and Head of the Department of Community Medicine, Dr. Reenu Bedi Ma'am, for an overview of WHO 2017 theme, Depression, Let's Talk. Ma'am is increasingly striving to make a social physician, showing tender care and hearty concern to all the young buds in the bouquet of community medicine, thus grooming them to become key stakeholders for community health. Please welcome ma'am. Good morning, everyone. So as you all know, the theme for today is depression, but let's talk about depression. Overview of this problem. World Health Organization first held a meeting in the year 1948 at Geneva. It was decided then to celebrate the World Health Day annually on 7th April of every year. Varieties of activities are observed by all the countries in the presence of wide media coverage, both print and electronic media. Now, what are the objectives? Why it is being celebrated? Mainly to increase the public awareness, to provide detailed knowledge of the disease. One disease is decided and all the countries are made to follow it, to generate public awareness material and to develop their health policies and programs in relation to that disease. To encourage most vulnerable groups to check their health status and follow medications, again very important. To motivate worldwide health authorities to make their own efforts in that direction. To protect families living in the disease vulnerable areas, mainly in cases of vector-borne and other communicable diseases. To protect travelers from specific diseases while traveling. Now, why this theme for this year? As you all know, depression affects people of both sexes, all ages, all strata and in all countries. That is, it is ubiquitous in distribution. Now, this impacts on people's ability to carry out their daily work. Man days are lost because of this disease. There is devastating relationships resulting into breakages, may lead to suicides. A better understanding of depression and this problem shall reduce stigma and more people will come out seeking help. The campaign slogan for this year is Let's Talk. On 10th October 2016, World Health Organization launched a one-year campaign, Depression Let's Talk, and the health promotional material was being developed since then. For people living with depression, talking about can be a very first step towards recovery. So this is very important. Let's talk, let's share, let's come out. Now, why this is needed? 1 in 4, that is 1/4, will suffer from mental illnesses at some point of in their lifetime. Number 1 disease whereby 2/3 of those living with a mental illness do not seek help is stigma. Although effective treatments are available, many do not have access to treatment or do not take advantage of the services. Promoting mental health and well-being is an integral part of Sustainable Development Agenda. Again, the Sustainable Development Goals, they do not forget to mention mental health to transform the world by the year 2030. Now, the target persons, depression can affect anyone, so this campaign is for everyone. But 3 groups are mainly affected. Firstly, adolescents and young adults, the first group. Women of childbearing age, particularly after childbirth, that is the perinatal period. Older adults more than 60 years of age. Now, the stigma attached to it. The root of stigma comes from the upbringing, that is the family of origin. Bitter childhood experiences, bitter workplace experiences, lack of understanding and perhaps lack of personal experiences. The workplace is a very important environment in which it is especially difficult for individuals to speak about
their mental illnesses. Now, there are certain ways which have been proposed which can reduce the stigma. Firstly, education. Then keeping a dialect or conversation in the vernacular language or the local language, listen and talk about it. And the support by the family, friends, health professionals. There are certain myths which are associated with depression. Many believe that depression is mainly sadness or merely sadness or weakness. वो कहते हैं कमजोर हो गया है इसलिए उदास बैठा है. But the fact is it's a complex mental disorder with social, psychological and biological origins which can be treated in many ways. Another myth is depression or antidepressants always cure depression. For many people these aren't alone enough. They need medicine with or without psychotherapy. So psychotherapy definitely has a role in it. Many think depression can be treated with positive thoughts and interchange of attitude. But the fact is it's a medical condition where brain, physiological, biological and structure are negatively affected by environmental and biological factors. Then depression occurs because of sad situations, mainly maybe a death in the family or a near one, financial or relative breakage in the relations, and this is a myth. The fact is it can arise even suddenly, inexplicably, even if everything in life seems to be going well. Another myth is if your parents have depression, then the person will have. But the fact is only more likely you get, and the scientists are not sure how significant it is determined by the inheritance. Antidepressants will always bring a change in personality. But the fact is they only relieve symptoms without changing the underlying personality. Then antidepressants once started have to be continued forever. But this duration depends on many factors. In most cases, addition of psychotherapy at the correct time will lessen the medication. So use and may be stopped if the medication is less or decreased. Other cases it may need a longer time. Another myth is women are commonly affected. But the fact is both the sexes are equally affected, but men are usually not comfortable discussing their problem or asking for help. So case reports are usually less with males. Then talking about depression will make things worse and makes you focused on negative experiences in life. 90% people who are being alone with such thoughts are more harmful than those who are interactive or talking to others. Now, in short about the problem statement, although it is to be taken up by Dr. Mahesh Keswani, who is the next speaker. In 2016, 350 million people of all ages, they suffered from depression globally. By 2030, depression will be the leading cause of disease burden. Depression and anxiety cost global economy more than $1 trillion per year. And this will increase to $16 trillion in the next coming 20 years. Then 3 out of 4 people with severe mental disorder receive no treatment. Depression in women following childbirth can affect development of the newborns. Lack of treatment is there because of high economic cost of the medicines. People with mental disorders are exposed also to a wide range of human rights violations. So these are all the effective barriers for effective care. Now these are the people who have been helping in formulation of the toolkit for this activity throughout the country by the IAPSM. These are the people who are in the state and the central team involved in development of all the activities for this day. Thank you all. Thank you, ma'am. Depression affects all ages, all walks of life, and it becomes difficult to carry out simple day-to-day activities. It is very important to know the magnitude of any health problem before taking preventive, promotive, curative or rehabilitative measure to solve the issue. I humbly request Dr. Mahesh Keswani sir, Associate Professor, Community Medicine with deep insight in epidemiology of the subject to come up with problem statement and national facts on mental health. Please, sir.
Good morning, Principal Sir, Dr. Bhaskar, Senior Professor, Dr. Mahendra Jain, Psychiatry Department, Asha ji, and my dear colleagues. That depression is a condition which is rising, and our response is too small to deal with the speed with which depression is increasing. Identifying this condition, the WHO has decided to address this issue, and the response, they have come up with a project which will be following up so as to control this condition in coming years. Now, depression is one of the priority conditions that we have already grasped. Now, the resources are scarce. The disease load is very high and would still increase in coming years. So, increased services are required. So, increased services for people with health workers who are not specialists in mental health. We cannot come up with specialist mental health to deal with the huge disease. So, non-specialist people would be our resources. Because our basic idea is that depression, the first stage to prevent this disease is let's talk. So this approach, the WHO has responded and has decided that health workers who are not specialists in the mental health would be the key persons to control the disease. The program asserts that with proper approach, I repeat, the program asserts that with proper approach, depressed can lead a normal life even where resources are scarce. Now, mental health and psychosocial support is a key role. Now, this psychosocial support is where a sound communication can prevent the depression to go into subsequent complications. The target group in emergencies would be our specialist people and health workers, voluntary organizations which are not so experts but would be the first borderline workers for us. The WHO emphasizes that exposure to extreme stressors is a risk factor for mental health and social problems. The department works mostly on resource-poor countries because Southeast Asian countries is where the maximum load is there presently, and here our resources are scarce. Now, the WHO responses in mental health gap action program. Now, there is a gap between the disease load and the resource. Now, we are ultimately, our aim is to reduce this gap so that we can address the issue in a proper condition. Now, World Health Organization Mental Health Atlas 2014 shows that more than 45% of the population lives in countries where there is less than one psychiatrist per 1 lakh people. As we know that 1 out of every 4th person would face depression at any moment of his life. And the response rate you can expect is that we should have at least 25%
of this load as responsive, while we had just one psychiatrist per 1 lakh population in these countries where 45% of the population lives. The interventions often are not evidence-based or high quality. That is both the reasons, because the load is more, resources less, and the training response. Therefore, intervention is often not non-evidence based or of high quality. Mental Health Gap Action Program has been developed with objective of scaling up the care for MNS disorders in 2014. That was the first vision. Now, mental health gap approach would be interventions on evidence about the effectiveness and feasibility. This was in the first phase. Then the mental health gap intervention guide was developed, which is guidelines in non-specialist healthcare settings, that we decided that it can be feasible only when we use non-specialized healthcare settings. Now, the second phase, the mental health gap aims to scale up services of MNS disorders, particularly in low and middle income countries, mostly the African countries and the Southeast Asian countries. Core resource here would be use of non-specialized health settings. And the third phase came down with assessment of section. Here, these non-specialized workers would be provided with flowcharts. Starts with common presentations of depression, clinical assessment questions, and to reach a final assessment. And user starts up top, move through all points to develop a comprehensive clinical assessment and management plan. The management section is how to manage the specific conditions, and the follow-up section how to continue the clinical relationship and follow-ups. Also includes in a module are how to implement the mental health gap, the first generation. Now, these institutions have been developed, and the training and modules are being scaled up, which would be launched this very year. Now, this action plan actually started in 2013, would go on to 2020, and then would continue to control this particular disease. The basic vision is a world in which mental health is valued, promoted, and protected. Mental disorders are prevented, and persons affected by these disorders are able to exercise full range of human rights and to access high quality, culturally appropriate health and social care in a timely way to promote recovery, all to attain the highest possible level of health and participate fully in society. Now, this bar chart basically shows the spending, that is the amount of percentage of our spending of the total health is very low, while as compared to the disease load. In low income countries it is just 0.5%, while in lower middle income countries where India comes, we are spending 1.9% of our total health budget to mental health. Upper middle income countries are spending 2.4%, and high income countries are spending 5.1%.
Now the mental health services availability and uptake. As I already told you, there is just one specialist psychiatrist per 1 lakh population in these countries. Median mental health beds per 1 lakh population is less than 5 in lower and lower middle income countries, that is like a country like India, while it is more than 50 in high income countries. So we are just 1/10 or and as compared to the higher income countries, whereas the load is 45% here in these countries. Mental health program and prevention. 41% of WHO member states have at least 2 functioning mental health promotions and preventing programs, which presently we do not have in India. Out of more than 400, half are aimed in improving mental health or combating stigma. Now, the condition in our country or the Southeastern Asian countries, the total population, as I already told you, is 41%, 45%. The income is lower middle income. Total health expenditure per person is $61. While availability, there is no mental health data in these countries presently at all. That means we have not even been able to judge the total load in these countries. Now the resources for mental health. Main source of funds for care of several mental disorders is our households. The government sector is not been able to provide anything. The inpatient outpatient budget breakdown reported is nil, and if at all it is there, it is not applicable. So our government sector is spending very less as compared to the disease load. The human resource for mental health, total reported staff is so negligible that it has never been reported. We have never been able to classify that this particular healthcare staff is designated for mental health. We include it in the total healthcare facility, but we have never been able to divide it that this is for mental health and this is for the curative health. And the total mental health workers per 1 lakh population, an estimate is that 0.6, less than 1 person is taking care of 1 lakh population. Now the mental health workforce per 1 lakh is normally 1 psychiatrist per 1 lakh population, 2 nurses per 1 lakh population, 3 psychologists per 1 lakh population, and 4 social workers per 1 lakh population. This is the present condition in Southeast Asian countries. Now our basic objective is committed to closing the gap between what is needed and what is currently available. The basic team act through 3 core projects, which we have already told you, where mental health emergencies
and non-specialist workers would be the key persons so as to increase the workload. The core projects is Mental Health Atlas, which will design to estimate the total disease load. This project initially started in 2001, but still not complete. WHO aims in assessment instruments for mental health systems, tool for collecting information of a country or a region, and improve mental health system, and to provide a baseline for monitoring. And the third would be the target group, any population exposed to extreme stressors. So this we have now judged what basically mental health is and what is the load, where we are going and what resources we have in hand. Thank you, sir. Thank you, sir, for updating us on current scenario. We see many smiles every day, but we never know whose world is upside down. Depressed person feels ashamed of himself and feels that he is worthless and replaceable. Depression steals his education, friends, motivation, dreams, future life, and he himself. Depression is living in a body that fights to survive and a mind that tries to die. It's a grave problem. General public needs to come out of the cocoon and take appropriate treatment for the disease at right time. At right time, appropriate treatment. Now I invite Dr. Mahendra Jain sir, Senior Professor and Head of the Department Psychiatry, to add to our knowledge regarding diagnosis, treatment and prevention of depression. Welcome, sir. धन्यवाद, नमस्कार और स्वागतम। बड़ा मनोरम दृश्य है। इस आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर भास्कर साहब, परम आदरणीय गुरुजी आचार्य सत्यजीत जी, उनकी टीम, डॉक्टर बेदी, मेरे सीनियर कलीग्स, डिपार्टमेंट के डॉक्टर पार्थ सिंह, डॉक्टर चरण सिंह, अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स, अन्य चिकित्सक जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मीडिया पर्सन्स व अन्य लोग। जैसा कि आपको विदित है कि आज का ये प्रोग्राम विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 डिप्रेशन लेट अस टॉक, इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। आज सारे मेडिकल कॉलेजों में एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रातः के समय सीएमई और दोपहर के समय क्विज प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेजी से अंदर अंदर बिना किसी ज्यादा जानकारी के बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इसको रखने का जो मुख्य उद्देश्य है कि डिप्रेशन का स्केल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आत्महत्याएं इतनी ज्यादा होने लगी हैं, और जो प्रोजेक्टेड डेटाज हैं 2020 तक, उसमें डिप्रेशन शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभरकर सामने आ जाएगा लगभग 2-3 सालों के बाद। मुख्य बात यह है कि इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में हम जानकारी जुटाएं, इसके बारे में हम सही समय पर सही कदम उठाकर इसका उपचार करें ताकि हम इसको रोक पाएं। मैं ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं जो अभी लेटेस्ट घटित हुआ है। मेरे एक परम मित्र जो बहुत सीनियर सर्जन हैं, दंपत्ति दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सर्जन हैं, उनकी बेटी इंजीनियर है, बिट्स पिलानी की टॉपर है। बीटेक करने के बाद उसने बहुत अच्छी कंपनी में बेंगलोर में जॉब करनी शुरू करी। सब कुछ बढ़िया था, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत संतुष्ट थी। अचानक धीरे धीरे उस बच्ची ने यह कहना शुरू किया कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है,
मेरा मन उदास होता है, कभी कभी रोने की इच्छा होती है। जैसा कि यूजुअली हम लोग देखते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद हमने उसको कंसोल किया, समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम घर से दूर चली गई हो, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। समय बीतता गया, लक्षण बढ़ते चले गए, उसकी एफिशिएंसी कम होती चली गई। कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले, उसने अपनी मदर को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उसका कंटेंट अलार्मिंग था। उसने अपने अकेलेपन की व्यथा को जिस तरह से वर्णित किया उसमें, कि सुबह के समय उठ के मैं फ्रेश फील नहीं करती हूं, रात को मुझे नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, आत्मविश्वास कम हो गया है, नकारात्मकता आ गई है, किसी काम में मन नहीं लगता है। ये सारे जो लक्षण हैं, ये क्लियर कट डिप्रेशन के हैं। इसके अतिरिक्त उसने बताया कि कभी कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मैंने कहीं बुक में पढ़ा है कि मन की उदासी को मिटाने के लिए कुछ आक्रामक क्रियाएं की जाए, जैसे अपने हाथों को काटा जाए, अपने हाथों से ब्लड निकाला जाए और उससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसके लिए मैंने कई प्रयास किए हैं, कई बार कैंची से, नाइफ से अपने उंगलियों को काटने की कोशिश की है, पर मुझे सफलता नहीं मिली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं कूदकर या अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे जीवन बेकार लगता है। इतना क्लियर कट संदेश, क्राई फॉर हेल्प, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा किसी पेरेंट्स को उसके बच्चे नहीं दे सकते। वास्तविकता यह है कि हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं, पर हम या तो उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, अनजान बन जाते हैं, और सही समय पर सही जानकारी नहीं उठा पाते हैं। तो उनको ये कहना पड़ा कि भाई अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, यू मे लूज योर डॉटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा वो आपको नहीं कह सकती है। आप तुरंत उसको बुलाइए, उसकी काउंसलिंग करवाइए, मनोचिकित्सक को दिखाइए, डिप्रेशन की बीमारी को समझिए और उसका उपचार शुरू कीजिए। इसके बारे में जो स्टिग्मा है लोगों के मन में, जो अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं कि ये कोई पागलपन की बीमारी है या नहीं है। लड़की पागल नहीं है, हम भी नहीं कहते हैं लड़की पागल है, पर जिस अवस्था से वो गुजर रही है, जिस दौर से वो गुजर रही है, वो वास्तव में खतरनाक है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, जब आप ध्यान से देखेंगे, उन लक्षणों के बारे में आप जब समझेंगे, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी और तभी इसके बारे में पूरी बात हो पाएगी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक लगातार उदासी की स्थिति बनी रहती है। रूटीन की एक्टिविटी से आदमी का इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो हम लोग जीवन में नॉर्मली एंजॉय करते हैं लाइफ को, वो हम भूल जाते हैं, हम एंजॉय नहीं कर पाते उसे। और अपनी जो डेली एक्टिविटी है, जिसको हम नॉर्मली बहुत सहजता से, स्मूथली कर लेते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। जब ये स्थिति बढ़ती चली जाए तो वो एक डिप्रेशन की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे उदाहरण है कि जब आदमी उदास होता है, उदासी की अधिक स्थिति में आ जाता है, तो क्या क्या लक्षण होते हैं। उदासी है, मन में खालीपन है, निराशा के विचार हैं, भूख कम हो जाती है या कभी कभी बढ़ जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कभी नींद बिल्कुल नहीं आती है, कभी नींद जल्दी खुल जाती है। स्पेशली सुबह के समय मन में बहुत खराब विचार आते हैं, नकारात्मकता बढ़ जाती है, आदमी में एनर्जी की कमी हो जाती है, हर वक्त थका थका महसूस करता है, अनिर्णय की स्थिति हो जाती है, काम करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, अनिर्णय की स्थिति हो जाती है, एकाग्रता में भारी कमी, याददाश्त में कमी, अपने बारे में एक वर्थलेसनेस, जीवन बेकार है, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैंने जीवन में जो भी काम किए गलत काम किए हैं, मुझे जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। इस तरह की नकारात्मक विचार, इस तरह की नकारात्मक बातें आने लग जाती हैं और अंत में कई बार आत्महत्या के विचार आने लग जाते हैं। डिप्रेशन एक कमजोरी नहीं है। कमजोरी से किस तरह से अलग है? ये जो कुछ ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, ये डिप्रेशन को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट तो नहीं करते हैं, पर डिप्रेशन की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी आपके सपोर्ट सिस्टम को, आपकी स्वस्थ अवस्था को कमजोर कर देते हैं। गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, घर में किसी प्यारे व्यक्ति की डेथ हो जाना है, आदमी का मन उदास हो जाता है। ऐसे में डिप्रेशन जल्दी घेर सकता है उसे, या कोई
लंबी फिजिकल बीमारी हो जाती है या किसी भी प्रकार के अल्कोहल या सब्सटेंस का अब्यूज करने लग जाता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होने लगती है और वो उदासी की स्थिति में जल्दी आने की संभावना प्रतीत होती है। ये बायो साइको सोशल एक मॉडल है जिसके हिसाब से 3 जो एंगल आप देख रहे हैं, कॉग्निशन, अफेक्ट और बिहेवियर, वर्तमान वातावरण में इन तीनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। कॉग्निशन का मतलब हमारी सोच, हमारे विचार, अफेक्ट का मतलब हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस, और बिहेवियर हमारा व्यवहार। जैसी हमारी सोच होगी, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, वैसा ही हमारा मन होगा और वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। इन सब का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन जीवन में चलता है और जब ये बैलेंस कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है वातावरण के हिसाब से, तो आदमी की ससेप्टेबिलिटी डिप्रेशन के प्रति काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट। ये एक वीडियो है, आई थिंक आपको अगर इसकी आवाज अपन लगा सकें तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि डिप्रेशन की स्थिति में कोई भी छात्र, कोई भी लड़की कैसा महसूस करती है, कैसा उसका व्यवहार हो जाता है, किस तरह का उसका व्यवहार होता है, क्या वो अंदर से महसूस कर रही है। शारीरिक रूप से शायद वो स्वस्थ है, पर वो कितनी तनाव में है, मानसिक अगौनी कितनी ज्यादा है उसको, ये इसमें एक छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास किया गया है। प्राय ये देखा गया है कि डिप्रेशन के बारे में उसके संबंधियों को या तो पूरी जानकारी नहीं होती है या अपने संबंधी या जो मरीज होता है, रोगी होता है, उसके मन की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। और चूंकि उदास व्यक्ति अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने में डरता है, उसको डर लगता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, यही डिप्रेशन की बीमारी है। इसलिए वो कई बार हेल्प लेने में झिझकता है, कई बार मनोचिकित्सकों के पास नहीं आ पाता है, काउंसलर्स के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पागल समझा जाएगा। और यही एक कारण है कि वो बीमारी अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है और एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। जैसा कि इसमें बताया कि हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या के शिकार होते हैं। हालांकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके नीचे कितने लोग सब क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार हैं, उदासी के शिकार हैं। ये तो वो लोग हैं जो जीवन को हार चुके हैं,
हर तरह से निराश हो चुके हैं और आत्महत्या का उन्होंने सोच लिया है। और सबसे ज़्यादा सुसाइड 15 से 29 साल के बच्चों में, इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा महसूस की गई है। When mild people can be treated without medicine, depression is moderate, severe, they can be needed medication and professional help. काउंसलिंग की ज़रूरत है शुरुआत में, अगर वो बढ़ती जाती है तो दवाइयों की, एक प्रोफेशनल हेल्प की और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। These are some key points. It's a common mental disorder. The number of people living with depression in the world is almost 350 million. It is leading cause of disability worldwide and is the major contribution of overall global burden of disease. The proportion of the global population with depression in 2015 is estimated to be around 4.4. ये डॉक्यूमेंटेड फिगर हैं, पर जो प्राय देखा गया है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग एक सब क्लिनिकल, एक उदासी, एक हल्की निराशा में लगातार रहते हैं। डिप्रेशन इज मोर कॉमन अमंग फीमेल्स 5.1% देन मेल्स। Prevalence rate vary by age. Peak in older adulthood, almost 7.5% among female aged 55 to 74 years and above 5.5 among males. बच्चों में भी, युवाओं में भी, एडोलेसेंट्स में भी डिप्रेशन काफ़ी देखा गया है। हालांकि उसके प्रेजेंटेशन डिफरेंट होते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। पॉइंट प्रिवलेंस डिप्रेशन की जो है, किसी एक पॉइंट पे 1.9 to 2% फॉर मैन एंड 3.2% फॉर वुमेन। 1 year prevalence has been estimated to be about 5.8% for men and 9.5% for women. And lifetime prevalence of depression is about 15 to 20%. यानी पूरे जीवन काल में किसी भी आदमी को लगभग 20% संभावना होती है कि वो उदासी या डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अब इंडियन सिनारियो क्या है? हालांकि इंडियन सिनारियो वर्ल्ड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। Almost 2.6% of Indian population are known to have depression. The prevalence is possibly much higher as most of these cases go undiagnosed due to ignorance and social stigma. Prevalence rates were nearly twice in the urban areas, and for depression is to be around 19.4 per thousand in urban population. सुसाइड का जो जिक्र आता है, 2004 से 2014 के अगर आंकड़े उठा के देखी जाएं तो सुसाइड रेट जो है काफ़ी तेजी से बढ़ी है। पर रीसेंट टाइम में सुसाइड रेट धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने की वजह से, उदासी की बीमारी को पकड़ने की वजह से, जल्दी उपचार की वजह से धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई है। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेट वाइज इंसिडेंस एंड परसेंटेज शेयर है सुसाइड का। पॉसिबली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु में उसके बाद है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, अदर स्टेट्स। राजस्थान में फॉर्चुनेटली सुसाइड की रेट ऑलमोस्ट 3% है, कम है काफ़ी और स्टेट्स के कंपैरिजन में। पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है, फॉलोड बाय सिक्किम, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। रेट सुसाइड राजस्थान में इसमें 6.3%। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सुसाइड? जो एक सर्वे में, स्टडी में आए हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेसेस, उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज है, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, अदर प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, बैंक्रप्सी की, उधारी की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम कहीं न कहीं उदासी को कंट्रीब्यूट करती हैं और वो फर्दर सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। फेलियर ऑफ एग्जाम है। दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन का एक सिंबल मान के, एक आइकॉन जो है, एक मैसेंजर बनाया गया है वर्ल्ड वाइड। उसका अपना एक्सपीरियंस सुनिएगा कि वो किस तरह से उसने डिप्रेशन को अपनी लाइफ में ओवरकम किया। About 2 years ago, when my parents were and my sister were, they were in Mumbai, they were visiting me, they were packing their bags and ready to leave, and I was sitting on the bed and I was curled up, and my mother said to me, she said, "Are you okay?" I said, "Yeah."
very, very important for all of us to realize that in the society that we live in today, we've become so competitive, we've become so driven, which is a good thing, but I think in the process, we've become a little less sensitive to the people around us. And so through this campaign, we urge, I want to dedicate it to everyone who has survived. I want to dedicate it to those who are struggling and let you know that there is hope. And a message to society which is, let's all become a little more sensitive to ourselves and to the people around us. Thank you. ये दीपिका पादुकोण जो कैंपेन पार्टनर है डिफीट डिप्रेशन कैंपेन के लिए इंडिया की तरफ से, इसका भी रिपीटेड ये मैसेज है कि कोई भी डिप्रेशन का मरीज कुछ ऐसे सिग्नल देना शुरू करता है, कुछ ऐसी बातें कहना शुरू करता है, अगर उसके आसपास के लोग सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, जानते हैं उन बातों को, परसीव करते हैं उन बातों को, तो वो डिप्रेशन की बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। यही इस थीम का भी मैसेज है कि लेट अस टॉक। आप अपने मन की बात बताइए, मन की बात खोलिए, उसमें कई ऐसे कंटेंट होंगे जिससे पता लगेगा कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं। ये कुछ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज हैं, टॉप क्लास सेलिब्रिटीज, वेरी सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ, पर वो किसी न किसी लाइफ की स्टेज पे सीवियर डिप्रेशन यानी गहरी उदासी से पीड़ित रही हैं, लेकिन बाद में रिकवर हुई हैं, सही ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद जीवन में नए नए मुकाम बनाए। ये कुछ फिगर्स हैं सुसाइड विक्टिम्स के बारे में, एज वाइज, सेक्स वाइज। सबसे ज्यादा जो सुसाइड नोट की गई है वो अराउंड 30 साल और 45 साल के बीच में, और जो डेटाज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से साल में जो सबसे खराब और खतरनाक महीना होता है सुसाइड के लिए, वो ये वाला महीना यानी अप्रैल का महीना होता है। अगर रिपोर्ट्स देखी जाएं तो पूरे साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के आंकड़े अप्रैल के महीने में आते हैं। दिसंबर सबसे ज्यादा खुशनुमा, कम से कम सुसाइड वाला महीना माना जाता है। ऐसा कई वर्षों की, पिछले वर्षों की रिपोर्ट में माना गया है। इसके पीछे कई सारे कारण उन्होंने बताए हैं। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हैं, कुछ इस पीरियड में मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उनके पेरेंट्स काफी स्ट्रेस में होते हैं। कई सारे छोटे छोटे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो अप्रैल के महीने को सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। ये डेटाज हैं प्रोफेशन वाइज। हाउस वाइज में अराउंड 15%, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में अराउंड 20%, स्टूडेंट अराउंड 6%, अनएम्प्लॉयड पीपल अराउंड 8%, डेली वेज वर्कर्स अर्नर्स में अराउंड 12%, प्रोफेशनल्स में अराउंड 7 to 8%, अदर्स में 31%। और रीजन्स हैं सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडोअर्स, मैरिड, अनमैरिड, इनमें ये फिगर्स हैं। नेक्स्ट ये डिफरेंट मोड्स हैं। इंडिया में जो मोड्स अपनाए जाते हैं आत्महत्या के लिए, वो हैंगिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद पॉइजनिंग है, फिर फायर है, फिर ओवरडोजिंग है। ये है विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां ओवरडोजिंग इज द मैक्सिमम यूज्ड मेथड। वहां जंपिंग, वायलेंस, हैंगिंग, ये सब चीजें बहुत कम है। नेक्स्ट, let us talk about depression. Depression can affect anyone, so this campaign is for everyone, whatever your age, sex and social status. WHO का स्पेशल अटेंशन जो है इस बार 3 कैटेगरीज पे है जो वर्ल्ड वाइड सर्वे के हिसाब से जो ज्यादा वल्नरेबल हैं: एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज पर्टिकुलरली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, एंड ओल्डर एडल्ट्स अराउंड over 60 years. Untreatable depression can prevent people from working and participating in family and community life. At worst, depression can lead to suicide. It can effectively prevented and treated. Overcoming the stigma, this is the most important factor. अगर आदमी स्टिग्मा से निकल के आता है, जल्दी हेल्प लेने की कोशिश करता है, दिस इज द कोर फैक्टर। यही थीम है कि लेट अस टॉक, and talking with people you trust can be a first step towards recovery from depression.
हाउ डू यू मेक ए डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन? ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, पर दीज आर वेरी कंसिस्टेंटली यूज्ड क्लासिफिकेशन मेथड्स। DSM-5 जो क्लासिफिकेशन है कि लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का उदास मन है, काम करने की इच्छाओं में भारी कमी आ गई है, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हो गई है, 2 हफ्ते से ज्यादा लगभग उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इन बाकी कैटेगरी में अगर इनमें से 3-4 चीजें हैं, सिग्निफिकेंट चेंज इन वेट, स्लीप पैटर्न, एजिटेशन और रिटार्डेशन, फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, गिल्ट, वर्थलेसनेस, कांट कॉन्सेंट्रेट एंड मेक डिसीजंस एंड थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट कोर सिम्टम्स हैं। अगर आपको किसी मरीज में ये नजर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ही इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मोर सीवियर डिप्रेशन। सिमिलरली ICD-10 जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन है मूड के बारे में कि तुम कितने लंबे समय से कितना खराब महसूस कर रहे हो, तुमने अपनी जीवन की रूटीन एक्टिविटी में इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्या तुम्हारा, या पहले से ज्यादा तुम टायर्ड फील करते हो विदाउट एनी मेजर रीजन। अगर इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर यस में है तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो गया है, अपने आप में एक हीन भावना सी आ गई है, एकाग्रता में कमी आ गई है, नींद में प्रॉब्लम आने लगी है, भूख कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, वजन बढ़ने लगा है, कम होने लगा है, या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि लाइफ, जीवन बेकार है, जीने से कोई फायदा नहीं है। जब डिप्रेशन बढ़ने लगता है तो मन में ऐसी भावनाएं आने लगती है कि मर जाऊं तो अच्छा है, मैं बेकार इंसान हूं, जीवन बेकार है। उसको अपने प्रति, भविष्य के प्रति और अपने सराउंडिंग के प्रति एक नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है। यह डिप्रेशन का कोर सिम्टम्स है जब डिप्रेशन बढ़ने लगता है, ऐसी उसकी सोच बनती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर माइल्ड है, इन क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया जो फर्स्ट 3 वाले थे, और उसके अलावा अगर 2 क्राइटेरिया नीचे वालों में से मिलते हैं तो माइल्ड है, 5 मिलते हैं तो मॉडरेट है, और काफी क्राइटेरिया मिलते हैं तो 9 मिलते हैं तो एक सीवियर डिप्रेशन की स्थिति है। अब ये कुछ डिप्रेशन के वेरिएंट्स हैं। कई बार डिप्रेशन डायरेक्ट आदमी प्रेजेंट नहीं करता है, वो कुछ इंडिकेट ऐसा कर रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, पर वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है। और अपने देश में जब आप OPD में बैठते हैं, पेशेंट देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आके कहते हैं कि मेरा मन उदास है, मैं दुखी हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। इसकी जगह वो कुछ और इंडिकेशन देते हैं। क्या इंडिकेशंस हैं? डिप्रेसिव एपिसोड दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेशन, लाइफ लॉन्ग फ्लक्चुएटिंग डिप्रेशन, दिस टाइम या ड्यूरेशन मोर देन 2 years, यानी कंसिस्टेंटली उदास है, पूरा प्रॉपर डिप्रेशन नहीं है पर जीवन में थके थके उदास से लंबे समय तक चल रहे हैं, तो ये डिप्रेशन नहीं है पर एक डिप्रेशन की शुरुआती स्टेज है, डिस्थाइमिया है, मिक्स स्टेट है इन दोनों की। फिर एक मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई क्लियर कट रीजन नहीं है पर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, डोपामीन लेवल फ्लक्चुएट होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। आप कभी भी वेस्टर्न फिगर्स को उठा के देखें, जिन देशों में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है उसमें आप देखें कि पूरे देश की आबादी नवंबर से लेकर फरवरी के महीने में, जब वहां वेदर बहुत ठंडा होता है, ग्लूमी होता है, विंडी होता है, बहुत ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, धूप नहीं निकल रही है, सनलाइट नहीं है, तो बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट एक डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। यानी वो पूरा देश एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति में होता है। जब अप्रैल मई आती है, समर आने लगती है, ब्राइट डे लाइट सनलाइट आने लगती है, तो फिर वो डिप्रेशन, एक सैडनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ग्लोबल फिनोमेना है, स्पेशली ठंडे कंट्रीज में। ये कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी की कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, यानी मेजर डिप्रेशन तो है पर उनके साथ कुछ ऐसे एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, कुछ पैनिक सिम्टम्स हैं, कुछ GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, कुछ सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम ओवरलैप करते हैं पर कोर प्रॉब्लम उनकी डिप्रेशन है, गहरी मन की उदासी है, पर उसके साथ कुछ ऑब्सेसिव ट्रेट्स हैं, कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, पैनिक सिम्टम्स हैं, फोबिया हैं, डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, पब्लिक प्लेस में जाने पे घबराहट होती है, लिफ्ट में हम जा नहीं सकते हैं, भीड़ में हमें घबराहट होती है, पिक्चर हॉल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दरवाजा कोई खोल दे, हम तुरंत भाग के निकल जाएं, 1 मिनट नहीं बैठ सकते हैं।
ये सारे कुछ ऐसे कोमॉर्बिड सिम्टम्स है जो डिप्रेशन में पाए जाते हैं। Why missed? What are the reasons to miss this depression? 50% डिप्रेशन की लोग मिस्ड हो जाते हैं, 10% सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज्ड, रिमेनिंग 40% में से दे रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। अब उनमें से कुछ लोग तो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से, सीजन चेंज होने के हिसाब से ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग लगातार डिप्रेशन में बने रहते हैं। कभी कभी उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, कभी कभी सिम्टम उनके कम हो जाते हैं। अब जिस स्टेज पे वो टच में आते हैं, काउंसलर्स के टच में, सेंसिटिव लोगों के टच में, या ऐसे संबंधी जो उनको पहचान के उनकी इलाज करा सकें, ऐसे लोगों के टच में। प्रेजेंट सोमैटिक सिम्टम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, स्टिग्मा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आप कभी भी मेडिकल ओपीडी में देखेंगे, ऑर्थोपेडिक ओपीडी में देखेंगे, कार्डियक ओपीडी में देखेंगे, आपको लगेगा कि उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल फिजिकल सिम्टम्स का है, पर आप लगातार ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं, पर उससे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, और आपने किसी स्टेज पे एक एंटी डिप्रेसेंट ऐड किया। आप जनरली फिजिशियंस के पर्चों में, कार्डियोलॉजिस्ट के पर्चों में और लोगों के पर्चों में आप देखेंगे कि एक लाइट एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेसेंट ऐड होता है हमेशा। उससे उस बाकी रिमेनिंग ट्रीटमेंट की एफिकेसी काफी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये मास्क डिप्रेशन है, अंडरलाइंग डिप्रेशन है, जो डिटेक्ट नहीं हुआ है, डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं हुआ है, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हुआ है और वो पर रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट, according to ICD-10 and DSM-4 criteria, it seems very easy to diagnose depression, but the common presentation is very different. Like जीरेटिक पेशेंट में कभी आप देखेंगे वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हम लोग उदास हैं, उनकी प्रॉब्लम होगी याददाश्त में कमी आ गई है, सोमेटाइजेशन यानी छोटी मोटी प्रॉब्लम, इधर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ पेन सिंड्रोम्स हैं, कुछ ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, उनको लगातार शाम के समय एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको सबसाइड करने के लिए वो ड्रिंक करना है, नशा करना शुरू कर देते हैं, पर दीज आर कोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फिर उनकी मूड रिएक्टिविटी होती है, एक डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड वर्ड होता है कि डिप्रेशन का जो मरीज होता है वो सुबह के समय काफी गहरी उदासी में होता है, सुबह उसकी बड़ी खराब निकलती है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वो ठीक महसूस करता है, और शाम के समय आकर वो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अगर कोई इंसान उससे शाम को मिले तो कहेगा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, पर उससे आप पूछिए कि सुबह उसकी नींद जब जल्दी खुल जाती है और घबराहट शुरू होती है तो सुबह कैसा खराब निकलता है। दिस इज कॉल्ड डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड, मूड में चेंजेस आ रहे हैं, ये डिप्रेशन का कोर सिम्टम है। फिर कुछ मेडिकल इलनेसेस हैं, थायराइड है, थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन में, हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, हाइपरथायरॉयडिज्म में एंग्जाइटी, पैरानॉइड सिम्टम्स, मैनिक सिम्टम्स, ये बड़े कॉमन है। नेक्स्ट, बच्चों में जो डिप्रेशन है वो भी डायरेक्ट मैनिफेस्ट नहीं होता है, कुछ ये प्रॉब्लम्स लेके होता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक है, बच्चों में पेट दर्द हो रहा है, जाना नहीं चाहते हैं, लगातार स्कूल टाइम में पेट दर्द हुआ, स्कूल का टाइम ओवर हुआ, बच्चे ठीक हो गए। बेसिकली अंडरलाइंग सैडनेस, डिप्रेशन, अवर्जन, ये फीलिंग्स है, या कोई डेलिंक्वेंट बिहेवियर है, समाज के नियमों के हिसाब से नहीं चलना चाहते, नहीं चल पा रहे हैं, मूड चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, परफॉर्मेंस कम हो रही है, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस कम हो रही है, या कुछ सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया, नशे की लत में आ गए हैं। ये वो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे बच्चों में डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स अपनी सोसाइटी में अपन देखते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ खराब डॉक्टर्स होते हैं, खराब तो नहीं कहूंगा मैं उन्हें, कुछ कम अच्छे डॉक्टर होते हैं। अच्छे डॉक्टर की पहचान है कि गुड आई कांटेक्ट बनाए, जल्दीबाजी नहीं करे मरीज की प्रॉब्लम सुनने में, अच्छा एक लिसनिंग पावर होनी चाहिए, आप आदमी की बात को तसल्ली से सुनो, तभी वो आप अपने मन की बात कह पाएगा। जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आस्क क्वेश्चन विद सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंटेंट। मरीज डायरेक्ट नहीं कहेगा, स्टिग्मा है उसके मन में, वो कहना चाहता है, मन की बात धीरे धीरे झिझकते हुए कह रहा है। इफ यू आर ए गुड लिसनर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। लेस एक्यूरेट डॉक्टर्स हैं,
आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, आप खुद जल्दीबाजी में हैं और आपने पहले से ही अगर सोच रखा है कि भाई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटी बातें हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिप्रेशन का पेशेंट हमेशा हेजिटेंसी में होता है, स्लो होता है, he doesn't want to talk to anybody, he doesn't want to take any help from anybody. If you are open, if you are making a good eye contact, then only you will be able to listen the patient, understand the patient, diagnose the patient. Next. असेसमेंट में हम लोग कॉमनली देखते हैं कि क्या क्या सीवियरिटी है, कितने समय से है, उसकी सोशल स्ट्रेंथ, सोशल नेटवर्किंग कैसी है। मरीज उदास है, परेशान है, लगातार डिप्रेशन में आ रहा है क्योंकि सोशल स्ट्रेंथ नहीं है, घर में उसके फादर नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, फिजिकल इलनेसेस हैं, वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, सोशल सपोर्ट सिस्टम उसका नहीं है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच कॉजेज वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स डिप्रेशन। फिर व्यूज टू सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर, ये जो एक कॉग्निटिव एरर्स हैं, खुद के बारे में नकारात्मक सोच, दुनिया के बारे में नकारात्मक सोच, भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच, ये ऐसे कुछ कारण हैं जिससे डिप्रेशन बढ़ जाता है। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। पास्ट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फेलियर्स हैं, ठीक हो गया पर दोबारा रिलैप्स हो गया है उसकी। फिर कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स हैं जैसे मूड के हैं, भूख कम हो गई है, नींद कम हो गई है, एपिटाइट कम हो गई है, ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको असेसमेंट में देखने होते हैं। Now the treatment part. We'll briefly touch the treatment part. ट्रीटमेंट के जो गोल्स हैं, अपने को क्या करना चाहिए डिप्रेशन के पेशेंट को जब उसने प्रेजेंट कर दिया, डायग्नोज आपने किया है, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करें, रिमूव करें साइन एंड सिम्टम्स को, उसको अपनी पहले वाली बेहतर स्थिति में लाएं और फ्यूचर के लिए जो रिलैप्सेस है कि बार बार वो डिप्रेशन की स्थिति में नहीं आए, रिलैप्सेस नहीं हो, उनको रोकें आप। As I said earlier, assessment is important. On these grounds, societal risk कितना है, physical health कैसी है, psychosocial issues कैसे हैं, strengthening factors, support system कैसा है, मैनेजमेंट में स्टेप केयर अप्रोच है। आप धीरे धीरे आप उसको एनकरेज करते हैं, सपोर्ट देते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए बाध्य करते हैं। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं जिससे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप एनकरेज करते हैं कि तुम खुद करो उस काम को। एक दूसरे की हेल्प से तो काम हो गए हैं, पर अब अपने आप में ऐसा सिस्टम जनरेट करो कि तुम खुद करो उस काम को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट लिफ्ट में जाने से बहुत डरता है या उसको हाइट से फोबिया है, बहुत ज्यादा नहीं जा पाता है, 10वीं मंजिल तक जाते ही उसको सीवियर पैनिक अटैक आता है, वो भाग के वापस आ जाता है। आपने उसका ट्रीटमेंट किया, इंप्रूवमेंट आने लगा, आप उसको एनकरेज करिए कि तुम धीरे धीरे चढ़ना शुरू करो। फर्स्ट टाइम पहली मंजिल पे जाओ, दूसरी मंजिल पे जाओ, तीसरी मंजिल पे जाओ, आपकी एंग्जाइटी ग्रेडेड फॉर्म में कम होती चली जाएगी। फिर फाइनली किसी के साथ 12वीं मंजिल पे जाओ, फिर तुम अकेले जाओ, फिर कुछ देर वहां रोको तुम। ये जो ग्रेडेड टर्म है, जो बिहेवियर थेरेपी की डिफरेंट टर्म्स हैं, ये ट्रीटमेंट की कुछ मोडेलिटीज हैं जो मेडिसिन के साथ हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट स्टेज में क्या अपने को करना चाहिए, मेंटेनेंस में क्या करना चाहिए, दीज आर मोर थ्योरेटिकल। फार्माकोथेरेपी जो है, फॉर्चुनेटली डिप्रेशन इलाज उसकी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छी रेंज आ गई है, फ्री फ्रॉम ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उनकी। ओल्डर एजेंट्स से, ट्राईसाइक्लिक्स थे, माओ इनहिबिटर्स थे, अभी जो करंट में SSRIs हैं, SNRIs हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं और एजेंट्स हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आपने फार्माकोथेरेपी दी है, उसके साथ में इन कॉम्बिनेशन आपको साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, साइकोथेरेपी भी देना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जैसे आदमी का कॉग्निशन, उसकी सोच कमजोर हो गई है, नेगेटिव हो गई है, उससे उसका मन उदास हो गया है, उसका व्यवहार बदल गया है, उस पूरी अप्रोच को चेंज करने की टेक्निक CBT कहलाती है। या कुछ इंटरपर्सनल थेरेपीज हैं और कुछ सपोर्टिव थेरेपीज हैं। तो आइडियली देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। देयर आर सर्टेन साइकोसोशल इंटरवेंशंस। फिर कुछ न्यूरो स्टिमुलेशंस हैं, कुछ रेजिस्टेंट पेशेंट में जैसे ECT हम लोग देते हैं, जो अंडरलाइंग ब्रेन के जो केमिकल इम्बैलेंसेज हैं उसको करेक्ट करते हैं। कुछ RTMS है, रैपिड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक थेरेपीज है। दीज आर रिलेटिवली मॉडर्न थेरेपीज।
और कुछ और इन्वेस्टिगेशनल मॉडलिटीज हैं. दीज आर एडिड थेरेपीज. नेक्स्ट, सीबीटी इज इंपॉर्टेंट. इसमें आदमी के थॉट्स को, आदमी की भावनाओं को, आदमी के व्यवहार को डायरेक्ट एक्सप्लोर किया जाता है. उसमें कमियां पकड़ी जाती हैं, उसके ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए जाते हैं और उसमें चेंज किया जाता है. दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट वेज. आईपीटी भी सेम, इसमें अलग टेक्निक्स हैं, पर ये इंटरपर्सनल जहां प्रॉब्लम्स आती हैं उससे संबंधित होता है. नेक्स्ट, दीज आर डिफरेंट अदर टेक्निक्स. साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपीज हैं जो फ्रॉइड की थेरेपी है, कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिप्रेशन की रूट्स बचपन की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, भावनाएं हैं, परेशानियां हैं, उससे लिंक्ड है. तो इसमें फ्री एसोसिएशन दिया जाता है. पर दीज आर लॉन्ग टर्म थेरेपीज. दीज आर मेंट टू चेंज द इंटायर पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन. फिर कुछ बिहेवियर एक्टिवेशन है, मोटिवेशनल इंटरव्यूज हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोनिक साइकोथेरेपीज हैं. नेक्स्ट, ईसीटी है, आरटीएमएस. दीज आर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट अगर है तो ऑगमेंटेशन के लिए कुछ हम और मेडिसिन ऐड करते हैं. कई बार 2 एंटी डिप्रेसेंट का कॉम्बिनेशन हम प्रेफर करते हैं. तो दीज आर वेरियस ट्रीटमेंट मोडेलिटीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट एंड द नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द डिप्रेशन. नेक्स्ट, दीज आर सम हेल्पिंग. ये कुछ टेक्निक्स हैं जो माइल्ड डिप्रेशन में वर्क करती हैं. पेशेंट को आप इंकरेज करिए, उसका शेड्यूल बनाइए, उसकी प्लेजरेबल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, एक्सरसाइज पैटर्न उसका इंप्रूव करिए. असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी बात खुल के नहीं कह पाता, हिम्मत से नहीं कह पाता, तो एक असर्टिवनेस की ट्रेनिंग दी जाती है उसे. नेक्स्ट, these are general comments. Staying healthy. Next, don't take too much. अपने आप पे इतना बर्डन लो जितना आप कैपेबल हो. बहुत ज्यादा बर्डन एट द सेम टाइम लगातार लिए जा रहे हो, वो भी गलत है. स्टेप में लो, 1 by 1 लो. नेक्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली. नेक्स्ट, वर्क ऑन ए पॉजिटिव एटीट्यूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. आपके अगर सराउंड में कुछ नेगेटिव लोग हैं, आप उनसे बच के रहिएगा. अगर एनवायरनमेंट में वार्मथ है, पॉजिटिविटी है, तो कई बार कई आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप सप्रेस हो जाएंगे. नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नेक्स्ट, पुटिंग ऑफ बिग डिसीजंस. कई बार आदमी के मन में उदासी होती है, डिसीजन पावर वीक हो जाती है, तो हम लोग एनकरेज करते हैं कि अभी बड़ा डिसीजन लेने की जल्दी नहीं है, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद कोई मेजर डिसीजन लो. कोई शादी फिक्स करनी है, कोई फाइनेंशियल बर्डन आ गई है, कोई मेजर डिसीजन लेने हैं. फर्स्ट यू मेक योर सेल्फ हैप्पी, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, देन यू मेक ए बिग डिसीजन. नेक्स्ट, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को अननेसेसरी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड वी शुड अवॉइड. नेक्स्ट, वॉच योर डाइट. omega-3 fatty acids, folic acids, these are important things which we normally miss in our diet. Excessive alcohol consumption है, caffeine consumption है, this is harmful. Next, don't stop taking treatment. एक बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ढंग से लीजिए, रेगुलर लीजिए. रिलैप्स को रोकने के लिए लगातार ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, ये कुछ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज है जो कुछ वेस्टर्न सेटअप्स में लगातार रिसर्चेज में इनको अच्छा माना गया है और अच्छी फाइंडिंग्स आई है. आप कभी भी किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे तो वहां एक वॉलंटरी वर्क कंपलसरी होता है. व्हेन यू गेट एडमिटेड इन सम यूनिवर्सिटी और इन सम कॉलेज, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू सम वॉलंटरी वर्क once in a day, once in a week, 1 day in a week. इसका पर्पज ये है कि आप सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप में एक अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही है. ये इनके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है और ये आपको उस डिप्रेशन से, गिल्ट से, ग्लूमीनेस से दूर रखते हैं. नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल, ड्रग्स. मैनेज स्ट्रेस. एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं. देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. You should develop those strategies. Next, have an attitude of gratitude. भगवान का धन्यवाद दो, सोसाइटी का धन्यवाद दो, जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया उनका धन्यवाद दो, आपके गुरुजन का, आपके पेरेंट्स का. ये जो एटीट्यूड होना चाहिए आदमी के पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट अगर होता है,
उस आदमी के उदासी में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट, जॉइन ए सपोर्ट ग्रुप, ऑलवेज हेल्पफुल। उसमें आपको ऐसे लोगों से स्ट्रेंथ मिलती है जो इस फेज से गुजर चुके हैं। वो आपको ऐसी टेक्निक बताते हैं प्रैक्टिकली कि रुको मैं बताता हूं आपको इससे कैसे हिम्मत से लड़ा जाता है। नेक्स्ट, रिकनेक्ट। आज की इस मोबाइल की दुनिया में हम घर में 4 मेंबर बैठे हुए हैं, चारों अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं और मोबाइल के थ्रू अपना चैटिंग हो रही है। आपस में बगल में बैठे हुए आदमी को बगल के आदमी का नहीं पता है। दिस इज रॉन्ग। एक्सेसिव ये जो एक्टिविटी, दिस इज रॉन्ग। ट्राई टू रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, get your rest. Next, build your self-esteem. These are common things which we all know, but छोटी छोटी बातें जो हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, टॉक टू पीपल यू ट्रस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में कुछ लोगों को अपना ट्रस्टवर्दी बनाओ, उन लोगों से खुल के बात करो। हर आदमी पे आप ट्रस्ट नहीं करते, पर कुछ लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, you can have it forever. This is what you wish you could break it on. If that's the case, don't be ashamed. There are people out there who understand you. There is love and support all around you. By taking your order, you can get the help and assurance you need to fight through it. You are precious. You are loved. You are not alone. Have patience with all things, but most importantly, have patience with yourself. Treat each and every day as an opportunity to grow. We will always be here, waiting for you. thank you. Thank you, sir, for such valuable insight into the subject and illustrative presentation.